રાજનીતિ સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. અમદાવાદ શહેરમાં મિશન વાસ્તુશાસ્ત્ર આધારિત એક દિવસીય સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વાસ્તુશાસ્ત્ર ભારતની પ્રાચીન શિલ્પ સ્થાપત્ય અને ઘર તેમજ મહેલોને સંકુલ નિર્માણ કરવાની ભૌગોલિક પ્રણાલી છે અને જે તે પ્રદેશના ભૌગોલિક અભ્યાસ પ્રમાણેની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે. સાથે સાથે તે એટલી જ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ પણ ધરાવે છે. તેથી પ્રાચીન ભારત દેશમાં ઘર કે નાના મોટા સંકુલના બાંધકામની ભારતીય ઉત્તમ પ્રણાલી હતી. ભારતની આ પ્રાચીન વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રણાલી પર અનેક સર્વે અને પ્રયોગો પણ થયેલા છે અને તે વૈજ્ઞાનિક રીતે પુરાવાર પણ બન્યા છે. ત્યારે સામાન્ય લોકો પણ પોતાના સ્વપ્નમાં ઘર કે ધંધાના બાંધકામ નિર્માણમાં આ પદ્ધતિ અપનાવે તો તેના જીવન પર ચોક્કસ સકારાત્મક અસર થાય છે અને માનસિક શાંતિ પણ બની રહે છે તેવું વાસ્તુશાસ્ત્ર મિશ્રણ ડોક્ટર રવિ રાવે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું. તમે કહ્યું કે વાસ્તુ સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક છે, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની અંધશ્રદ્ધા કે કથિત અફવાઓને સ્થાન નથી. તેથી સમાજનું સામાન્ય જન તેને સ્વીકારે અને પોતાના ઉપયોગમાં લેવાતા બાંધકામના નિર્માણમાં ઉપયોગ કરે એ ખૂબ જ મહત્વનું છે. સેમિનારમાં વાસ્તુશાસ્ત્ર અંગે સંશોધન કરનાર તેમજ અભ્યાસ અગ્રણીઓનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. It is more auspicious. India is not. So, આપણે આનું નામ ભારત થઈ રહ્યું છે. સાથે સાથે સમયનો ગાળો ચેન્જ થઈ રહ્યું છે. Also, lot of people are talking about it. લોકો વાત કરે છે કે we were caught in the time frame of the Kali Yuga. Kali Yuga ચાલુ થયું 800 વર્ષથી કલયુગ ચાલુ છે અને આ કલયુગમાં આપણો જે સમય ચક્ર છે ભારતનું અમે બંધારણમાં આવી ગયા. We were slaves. We were slaves for 1,000 years. Now we are breaking the chains. Now we are coming out of it. હવે આપણે આમાંથી બહાર નીકળી અને we are going towards a new age. અને આ સમય બદલી રહ્યું છે અને I strongly feel that everybody here in the stage at this stage at this level would agree that this is the science. This is the science which can help us to change. India has got as their advisors and every planning, town planning, industry planning, house planning, city planning, everything, building should be as per Vastu. If that happens in next 20 years, the shape of the entire world, our entire country will change. Dasa and Disha, both badi jase. So this is the message. And secondly, from the childhood students ne education ma, हमारे teaching program ma, हमारे books માં આનું એક અવેરનેસ અને ધીમે ધીમે જે મોરલ સાયન્સ ભણાવે છે દરેક ક્લાસમાં એક મોરલ સાયન્સનો વિષય હોય છે ફ્રોમ ધ ક્લાસ કેરી કરે આવી રીતે એક વાસ્તુનો વિષય હોવો જોઈએ, એક ચેપ્ટર હોવું જોઈએ અને બાળકોને એમાં ઇન્ફોર્મેશન જ્ઞાન હોવું જોઈએ so that they can make the right decisions. And Vastu is nothing, it is a science which deals with the direction and the elements. Directions and elements ne aapne balance kari શકે, harmonious kari શકે, so you can create a prosperous atmosphere around you and you can be very happy and you can live in harmony with others. जो सेलिंग है वो फास्ट होगा, उसमें सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है. दूसरी चीज ये है कि साथ आपने बताया नहीं कि जैसे इंडस्ट्री बंद है, रवि भाई साहब ने बताया इंडस्ट्री बंद है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर टाउन प्लानिंग स्कीम या तो प्राइवेट डेवलपर को गाइड कर सके कि जब वो प्लॉटिंग करते हैं इंडस्ट्रीज का तो राइट डिग्री पे करें. राइट डिग्री पे अगर प्लॉटिंग करेंगे तो थोड़ा जैसे विदिशा प्लॉट में दिक्कत आती है वो नहीं आएगा और सक्सेस रेशियो बढ़ेगा. और जब इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री साहब ने बताया कि एग्रीकल्चर वो एक बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो पूरा देश का विकास बढ़ेगा और उसमें उन्नति. Contribution in this entire Vastu fraternity. But I have been doing this for about more than 25-30 years and I do it in more than 60 countries across the globe. I have a very special thing, our contribution to the economy can be in the form of industrialization because that is the core. If industries are doing good, economy will thrive and economy thrives, there will be employment and everything will go very well. So like we know very well that Kerala GIDC industrial area, 90% of industries are closed down. Or if you look at let's say Sanand area, all large companies are diminishing. So I agree to that an extent within that. We should be able to communicate this message to the government that we can actually do in the field of Vastu. They should be able to recognize it as a science.
which is presently not recognized because in our fraternity, as it is always there in all fraternities, there are a lot of fly-by-night operators, who will pose as a good Vastu guy and then people have a very bad experience about it. So I strongly endorse your view, Raviji, that we should have a system of communicating with government. And of course, Vastu can always, any day, play a role in industrialization. And if industries prosper, I think there will be an all-round prosperity. And he talked about children's education. I am actually doing, let's say, a Vastu of about 500 schools across the globe. And not from the point of view of Vastu, but since I am a Jain, I teach them one small mantra. And that mantra recitation has actually helped children to rise from 50% to 80 to 90%. So I will be very happy to share that also. It's there on my YouTube channel also. That if that mantra is, and Jain mantra is not something that people cannot do. It's a small 4-liners, So if it is allowed to be, taught to people, and I have been able to prevail upon all those schools where I do Vastu, because I did not tell them that it's a Jain mantra. I told them that it's the energy and power of sound vibration. So when you communicate something like power of sound vibration, energy of sound vibration, it works and it has worked. I have testimony of more than 200 schools with me. So yes, there is a need to address that issue as well. And so we should be able to rise beyond just the direction and the structure. If we can have a look at the in totality, then I think we can really add values. That is what my humble submission has been. Thank you very much. Thank you, sir. सभी महानुभावों ने बहुत सारी चीज़ें आपको वास्तु के बारे में बताई कि वास्तु की क्या इम्पोर्टेंस है, साइंस किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने जब ये वास्तु की हमारे ऋषि मुनियों ने रचना करी, वो बहुत समय पहले की बात थी और आज की परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं। जब तक हमें भूमि के दोषों के बारे में नॉलेज नहीं होगी, हम किसी भी तरह के वास्तु को सही तरीके से प्रोग्राम नहीं कर सकते। क्योंकि आज हम एक बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, लेकिन अगर भूमि में दोष है, वो भूमि अच्छी नहीं है, तो वो जगह कभी भी आपको समृद्धि नहीं दे सकती। तो आज हम कोई 4 दिन का एक सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं या छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं, लेकिन वो कोर्सेज की वैल्यू तभी है जब आपको बेसिक्स का नॉलेज हो। और आज जो रवि भाई ने ये बहुत ही अच्छा एक मिशन वास्तु जो रखा है, उसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि हम सब जो वास्तु कंसल्टेंसीज करते हैं, चाहे वो किसी भी मोडालिटी से करते हो, मोडालिटी कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है जब तक कि आपका ज्ञान सही हो। तो हमें मोडालिटी को अलग रख के और भारत को एक विश्व गुरु या विश्व ताकत अगर हमें बनाना है, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम सही रूट कॉज भूमि को सही तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं और लोगों को इसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं कि इसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। जैसे अम्बीश भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही कि सानंद GIDC है, केरला GIDC है, यहाँ पर टाटा या उससे भी बड़ी बड़ी कंपनीज, और जैसी कंपनीज भी आके अपनी पूरी व्यवस्थाएं, पैसा, सारे संसाधन लगाने के बाद भी नहीं चली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कॉर्पोरेट मैनेजमेंट नहीं आता है। उस जगह में जरूर कोई ऐसी बात है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं या गवर्नमेंट को उसका नॉलेज नहीं है, तो उसको हम सही तरीके से गवर्नमेंट में पेश करें और उस वास्तु जो वास्तु है उसके बारे में सही संज्ञान अगर हम गवर्नमेंट को देंगे, तो शायद हम बहुत अच्छी तरीके से इन सब प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं चेतन पंचाल, मैं पैरानॉर्मल वास्तुशास्त्री और एस्ट्रोलॉजर हूँ और अहमदाबाद में आज 2009 से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज अहमदाबाद में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिल्डर्स सब
वास्तु पे ही एक राय लेकर के ही काम करते हैं। तो आज हमारा एक अच्छा इतने साल से यहाँ पकड़ बनी हुई है और पब्लिक को धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है कि कैसे वास्तु काम करता है, कैसे ज्योतिष काम करता है, कितना इम्पोर्टेंट है। और आजकल की लाइफ में इतनी बीमारियाँ बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स इतने इशू आ रहे हैं, लोग खुश नहीं रह पा रहे। तो उनको एक टाइम से ही आज ट्रेडिशनल विद्याओं में की तरफ जा रहे वो लोग, तो इसकी वजह से उनका एक रुझान बढ़ा है इसमें, और इस वजह से हमारा एक पहचान भी बढ़ी है। लोगों के जीवन में क्या महत्व है? लोगों के जीवन में बहुत महत्व है। आज दिमाग के अंदर अपनी कोई भी भावना पैदा होती है, चाहे गुस्सा हो, चाहे नफरत हो, प्यार हो, कोई भी भावना, जैसे कोई लालच हो गई, चोरी करने की भावना हो गई, या कोई भी भावना होती है, वो सारी भावनाएं सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से पैदा होती है। और दिमाग जो है वो पंचभूतों से बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी वगैरह पंचभूतों से। और पंचभूतों को जो ताकत मिलती है वो जमीन से मिलती है। आत्मा तो ऊपर से आती है, आत्मा को ताकत तो ऊपर, लेकिन पंचभूतों को जो ताकत मिलती है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मिलती है। तो अपने दिमाग को जो ताकत मिलती है, यानी कि अगर आपके घर पे जल तत्व की कमी हो तो क्या होगा कि आपके पास पैसे कमाने के नए नए अवसर नहीं आएंगे, तो आप अपनी एक सेटिस्फैक्ट लाइफ में जियोगे। आपका जो दायरा है आप उससे ऊपर कभी बढ़ ही नहीं पाओगे, यही आपकी लाइफ रह जाएगी। एक आपके घर पे जैसे अग्नि तत्व कमी हो गई तो आपके अंदर कुछ नया करने की उम्मीद होगी ही नहीं, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप एक कंटिन्यू आपके घर में पैसा हेम्परिंग होता रहेगा, कहीं ना कहीं मायूस रहेगी, डिप्रेशन अटैक रहेगा, नया एक झील जो रहती है वो चीज़ कमी हो जाएगी। सिमिलरली इस तरीके से जैसे पृथ्वी तत्व की कमी हो गई तो एक परिवार में बॉन्डिंग नहीं रहेगी, आपका कस्टमर के साथ, परिवार वालों के साथ, कुटुंब के साथ जुड़ाव नहीं रहेगा, दोस्त लोग नहीं रहेंगे, तो आदमी बाहर जा ही नहीं पाएगा, खुल के किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ बैठ ही नहीं पाएगा। जो 2-3 परिवार में 3-4 लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उनसे ही मिल पाएगा। अब बाहर की दुनिया नहीं देखेगा तो आदमी ओवर द टाइम क्या उसके रिलेशनशिप में कमी हो जाएगी, तो अंदर ही अंदर झगड़ा के कारण डिप्रेशन हो जाएगा, फिर तलाक जैसे इशू आते हैं। जैसे ये सिर्फ पृथ्वी तत्व से हर एक चीज, हर एक भावना, चाहे गुस्सा, नफरत, लड़ाई, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वास्तु से होता है। तो वास्तु और ज्योतिष से क्या होता है कि हम पंच तत्वों का बैलेंस करके हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। और मतलब जीवन की कोई भी तकलीफ है, जैसे पैसे कमाने की तकलीफ है, हम हर चीज़ से ऊपर आ सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। आज की तारीख में सबसे मेन क्या है? खुश रहना। आज की तारीख में आप देखो कि जितने भी सब्जियां देखो तो उसके अंदर भी बहुत सारे पेस्टिसाइड वगैरह मिले हुए आते हैं। पर आज हम इतने बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में गए, वो लोग तो जैसे उलाड़ी लेके ही बैठे हुए। एक बार कहीं पे भी तुम घुस गए तो आज खाली दिखाने भी गए नाम मात्र का तो 2-3 हज़ार के नीचे तो तुम तो आज हर कोई इतना महंगाई के दौर में पूरा पढ़ पाना। तो जब तक तुम्हारा एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं होगा तो तुम जमाने के हिसाब से तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और आगे ही नहीं बढ़ पाओगे तो तुम क्या करोगे? आज एक सेटबैक आ जाएगा। तो आगे बढ़ने के लिए एनवायरनमेंट अपने फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर अपनी संगत अच्छी है तो तुम, जैसे तुम्हारा अगर बिजनेसमैन का सर्कल है तो आदमी ऑटोमेटिक बिजनेस की तरफ ही रुझान जाएगा। तो बिजनेसमैन का सर्कल होना एक तरह का एनवायरनमेंट है। अगर तुम बीमार लोगों का एनवायरनमेंट रहोगे तो आदमी कितना भी अच्छा हो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ यार मेरे को भी ये हो रहा है, मेरे को भी ये हो रहा है। तो ऐसे अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट हेल्दी है, खुश है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर से खुशी जागृत होगी। तुम नई कोई भी चीज़ अच्छे लोगों तुम्हारे संपर्क में आएंगे, सामने से चीज़ें उठती हुई आएंगी। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटी होती है अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट सही हुआ तो। इसमें क्या है, वास्तु की बैलेंसिंग में जरूरी नहीं है कि तुम बड़े बड़ी पूजाएँ करो, ये सब धन्यवाद नहीं करनी होती। नॉर्मली पंच तत्वों का बैलेंस करो, घर के एनवायरनमेंट अपने आसपास का क्लीन होगा तो आदमी अंदर रहने वाले खुश होंगे, और खुशी होगी तो पैसा होगा, बिजनेस होगा, नौकरी होगी या सेटिस्फेक्शन होगा, सब कुछ होगा।
વાસ્તુશાસ્ત્રમાં જૂની જે પદ્ધતિ હતી એની પ્રમાણે જ આ વસ્તુ જોવા મળે છે. એકચ્યુઅલી આમાં શું હોય છે, વાસ્તુશાસ્ત્ર બહુ જૂની વિદ્યા છે. એવું નથી કે આ નવી 2-4 વર્ષમાં પેદા થયેલી વિદ્યા છે. આ 12,000 વર્ષ જૂની વિદ્યા છે. I will request all the Vastu experts to take their seats, please. વાંધો નહીં, પછી કે આ રાજ વિદ્યા છે. પહેલે આ વિદ્યા રાજા ઓર એના સામંતો સુધી લિમિટેડ હતી. એમ કે રાજાને એને જે સિપાહી હોતા હતા, જે સેનાપતિ હોતા હતા, હવે એને એવા કક્ષમાં જ સુડાવવાના આવતું હતું. मतलब राजा के सेनापति को ऐसी जगह पे ही सुलाया जाता था जहाँ पर उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ रक्षा करने के लिए, सेना को ट्रेन करने के लिए सेनापति बना रहे. आजकल क्या हो रहा है, हर कॉरपोरेट में देखो तो पॉलिटिक्स चल रही है, हॉस्पिटलों में पॉलिटिक्स चल रही है, और जहाँ पॉलिटिक्स चलनी चाहिए वहाँ पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, वहाँ पर कुछ और ही चल रहा है. आज दुकान किसकी खोल के बैठे हैं और वहाँ पर जैसे दुकान सोफे वगैरह की खोल के बैठे हैं और वहाँ पर ओनर साथ में कोई चूरन चटनी बेच रहा है कि मैंने नया आयुर्वेद का फॉर्मूला निकाला है. तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं पे एनर्जी डिस्टर्बेंस है. बिजनेस करने जा रहे हो वहाँ बिजनेस करो, तो वो एनर्जी सही नहीं है वहाँ पर, या बैलेंस नहीं है. तो उसको बैलेंस करना वास्तु का काम है. जैसा धर्मशाला है, धर्मशाला को उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा. तो वास्तु में जिस भवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य वो फुलफिल होना चाहिए. नहीं तो एनर्जी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो वो फिर वो जो पर्पस है वो सॉल्व होगा ही नहीं. हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ फिर क्या होगा कि लोग पैसे कमाने ही पड़े रहेंगे, आदमी ठीक होगा ही नहीं.